Hi everyone, how are you? Hope you guys are safe and happy, feeling happy. As we all know that there is a COVID-19 situation is all around the world and India as well. So I advise all of you to stay at home and follow the government guidelines. I introduce myself. My name is Ankit. I'm a chartered accountant, and here from the FinTech Advisory, we are presenting some of the slides, and I will tell you more about the India's and IFRS, India's applicability in India, and IFRS. What are the carve in and carve out from the India's and IFRS? I, along with my co-person, uh, Pankaj, he's also a chartered accountant. We both are having experience in India's and IFRS. We are working in a firm or a company in which we are having a work related to India's and IFRS. So I thought, why not to share with our all connections so that they get the more insight about the India's and IFRS. Over to you, Pankaj. He will explain you more about it. हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस घर घर तक पहुंच रहा है। सो स्टे होम, स्टे फिट, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन different topics related to the finance accounts. So today we will discuss with the topic related to IFRS and India's. बेसिकली इंडिया जब आया होता क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देंगे जिससे कि आप आगे उसको कंटिन्यू करके एक हम नींव बनाएंगे आपके लिए। बेसिक इंट्रोडक्शन वो देंगे, उसके बाद हम फिर आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन related to our presentation for India's and IFRS. Basically, first we will check what is IFRS and India's. What are the basic meaning of it? IFRS is basically the International Financial Reporting Standard. Like in India, we use accounting standards. जब आपने भी financial statements बनाई होंगी तो usually follow the accounting standards. Now, ऐसे ही similarly, outside India, the IFRS is followed. It is a standard developed by an International Accounting Standard Board. It provides a global framework and for how public companies should prepare and disclose their financial statements. बेसिकली पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते क्यों है, होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। होता क्या है, जब किसी चीज को हम कंपेयर करेंगे तो उसका बेस सेम होना चाहिए, तभी कंपैरिजन होता है। तो ये स्टैंडर्ड्स वही एक हमें बेस प्रोवाइड करते हैं। अगर बेस सेम होगा तो हम इजीली दो चीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इफ ऑल कंपनीज विल फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स, the base will be same, that we can easily compare their ratios, their different parameters, their net worth, their interest bearing ratio, and everything we can compare uh, with both the companies. So see, this is the main reason why the standards are issued. Now, what are the standards? How many number of standards? Initially, International Accounting Standards were introduced by International Accounting Standard Board (IASB) from 1 to 41. Now, after that, in 2000, IFRS was introduced, keeping in mind the major amendments which is required based on the current scenario at that time. So IFRS was introduced. Initially, there was 1 to 41 in IAS, and now there is IFRS 1 to 70. There is some typing mistake. This is IFRS 1 to 70. So हुआ क्या, IAS 1 to 41, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 to 41 नंबर्स इसमें काफी हैं, बट इसमें कुछ नंबर्स आप देख रहे होंगे मिसिंग भी हैं, लाइक 1 2 के बाद डायरेक्टली 7 एंड 8। तो जब पहले हम IFRS इंट्रोड्यूस हुआ तो ये इसको ओवरराइड कर जाता है। तो जो IFRS जब आते हैं तो लाइक इसमें आप देखेंगे IAS 17 लीज, तो जब ये IFRS में आया, इसमें मेजर चेंजेस आए तो IFRS 16 हो गया, तो इसमें से फिर IAS 17 हट गया। सिमिलरली IAS 18 रेवेन्यू कन्वर्टेड इनटू IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो जैसे जैसे IFRS आते रहेंगे इसको हम ओवररूल करते रहेंगे, ये ओवरराइड होते रहेंगे, हम फिर IFRS से फॉलो करेंगे। तो currently we are having 1 to 17 IFRS, and like this similarly in 1 to 41 these are the numbers, but maximum many of them are removed from this standards. Now what is like अभी आपने देखा कि IAS क्या है, IFRS क्या है।
don't mix with IAS with Ind AS. IAS मैं एक Implement Accounting Standard. Yeah, okay. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि इनने बताया कि IFRS एप्लीकेबिलिटी इसलिए होती है कि दो चीज़ों की कंपैरिजन करने की। एज यू ऑल नो दैट द इंडिया बिजनेस आर ग्रोइंग and Indians are investing foreign countries and foreign investors are investing in India. So यहाँ पे एक नीड रिक्वायर हुई कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस है वो सिमिलर होना चाहिए। तो ये भी मेन रीजन था, मोटिव था IFRS को इंडिया में अडॉप्ट करने का। बट इंडिया इकोनॉमी अलग है, बाहर की इकोनॉमी अलग है, तो उसमें बहुत सारे कार्व इन और कार्व आउट है। तो इंडियन इकोनॉमी को कंपैरिजन में लाने के लिए इंडिया ने पूरा IFRS लॉन्च नहीं करा, उसको इंडियस वे में लॉन्च करा, ताकि जो इंडिया में एडजस्टमेंट है, बैंकिंग रेट्स हैं, वो बाहर फॉरेन कंट्री से अलग है, तो ताकि वो अकाउंट फॉर हो सके। सो मेरे को यही ऐड करना था। ओवर टू यू। या जैसा अंकित ने बताया अभी कि हमने बाहर से इंट्रोड्यूस किया अपनी इकोनॉमी को देखते हुए, तो उस चीज को हम कहते हैं IFRS कन्वर्ज्ड इंड AS. It means that we have not fully implemented the IFRS, but we have made certain changes in IFRS and we have implemented Ind AS. अब जैसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड MCA लाता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. Similarly, the Ind AS is implemented. First, I will read you the text which is written. Ind AS is standards notified the MCA, which is converged IFRS. These standards are formulated by Accounting Standards of International Chartered Accountant of India (ICI). Now, India will follow the two set of standards. जो अभी तक हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं वो भी फॉलो होंगे और Ind AS भी फॉलो होंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज, हु विल फॉलो Ind AS एंड हु विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट, उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इसकी नंबरिंग कैसे है. जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये IAS 1 to 41 है और IFRS 1 to 17 है. अब वहाँ तो नाम अलग है IAS एंड IFRS, बट इन इंडिया देयर इज और सिंगल नेम Ind AS. सो अब इसकी बाइफरकेशन कैसे हो, उसका इसका एक हमने नया पैटर्न ढूंढा MCA ने, इसकी बाइफरकेशन भी हो जाए, सारे इंप्लीमेंट भी हो जाए. IAS है वो इंडिया में सिमिलर पैटर्न पे आएंगे, सीरीज में आएंगे 1 to 41. जो IFRS आएंगे वो 100 की सीरीज में आएंगे, लाइक 101, 102, 103, 117. सिमिलर इस, क्योंकि ये दो अलग अलग सीरीज होंगी तो हमें डिफरेंशिएट करने में काफी आसानी होगी. अब हम आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी. अभी तक हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे थे, अभी तक मींस बिफोर 1 अप्रैल 2016 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे थे. तो 1 अप्रैल 2016 आया, उसके बाद इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसकी ये स्लाइड है. रिलेटेड टू phase 1 and it is divided into phase 1 and phase 2. Phase 1 is related to the companies and phase 2 is related to the NBFC banking and insurance. In phase 1, जिसकी नेटवर्थ आप इजी टर्म में बोल सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, जिसकी नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, जो मेजर बड़ी कंपनीज होगी, बिग कंपनीज होगी, उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी पहले. उसके नेक्स्ट ईयर से, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है और 250 करोड़ से ज्यादा है, और बाकी सारी लिस्टेड कंपनीज में कवर हो गई. लिस्टेड कंपनीज, all listed companies plus private companies having net worth more than 250 crores has to implement Ind AS from 1st April 2017. For phase 2, it is for NBFC banking and insurance. For the insurance companies, this is to be implemented from 1st April 2020, जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है. इसमें भी शायद अभी कुछ इसमें डेफरमेंट आई है, कुछ आया है अभी ड्यू टू लॉकडाउन, उसको भी डेफर करा गया है. तो जैसे ही इसका हमें कुछ अपडेट होगा, आप विल कम बैक टू यू. And for banking companies also, it is also deferred. So earlier, main reason to show you this phase 2 is when the India is implemented in India. So what was the basic planning? Like from 2016, major companies covered big companies. From 2017, all listed companies and companies between 250 and 500 crore net worth. From 2018, bank is to be covered, like similarly on the similar pattern, like more than 500 crores. And from 2019, all bank and NBFC having 250 and 50 crores. But the both NBFC and insurance companies has been deferred. Now we will see when it will be implemented. अंकित, आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है?
बस मेरे को इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है कि जो बेस है इसमें नेटवर्थ कैलकुलेट करते समय हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट रिजर्व। तो उसमें एक और चीज़ होती है कि जो आपके एसेट साइड के राइट आता है, जैसे मिसलेनियस रिटर्न ऑफ रेवेन्यू डेफरमेंट, तो नेटवर्थ निकालते समय वो भी डिडक्ट करेंगे तो नेटवर्थ निकलेगी। As you can see that the more than, if the company is having a net worth more than 500 crore in the first phase and 250 crore in the from the date of 1/4/2017, so you can see that there is a lot of scope in the near future regarding the applicability of India's, because as the company will grow they have to follow the India. So it is a very good learning to having the phase wise manner. And as you can see that in phase 2 NBFC and banking sector are also available. So इसमें same. बेसिकली हमें नेटवर्थ समझना होगा, नेटवर्थ होता क्या है। तो जब ये नेटवर्थ आपको समझ में आ जाएगा तो एप्लीकेबिलिटी भी समझ आएगी। आप देखेंगे कि हर जगह नेटवर्थ वर्ड यूज हो रखा है हमने, हर इम्प्लीमेंटेशन इसके नेटवर्थ से आती है। तो नेटवर्थ होता क्या है और हम डिटेल में जानेंगे, जैसा अंकित ने बताया पीडीएफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, इसको हम और डिटेल में भी जानेंगे, बट वी विल कम टू यू लेटर ऑन बिकॉज दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड आईएफआरएस। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज carve in and carve out? Ankit, I would like you to have more clarity on this. रिकॉर्डिंग रोके एक मिनट। हेलो, हम आते हैं carve in carve out। बेसिकली carve in carve out, आउट और इन से आप समझ सकते हैं कि इसका इस चीज का रेफरेंस हमने क्यों दिया है यहाँ पे। आउट मीन्स क्योंकि हमने आईएफआरएस से ही इंडियस इंट्रोड्यूस करा है, तो कार्व आउट मीन्स हमने उसमें से कुछ क्लॉज हटा दिए। जैसे कि मेरे कलीग अंकित ने बताया था कि हमने इकॉनमी को देखते हुए थोड़ी बहुत चेंजेस करे हैं, क्योंकि हम सेम चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमने उसमें से कुछ क्लॉज हटा दी, उससे हम कहते हैं कार्व आउट। कार्व इन मीन्स हमने उसमें कुछ क्लॉज एडिशनल ऐड करा है, एड ऑन उसमें हमने कुछ करा है। तो इसमें कार्व आउट और कार्व इन का मीनिंग ये है। सो दिस इज द बेसिक, यू कैन से रॉ ऑफ इंडिया एंड आईएफआरएस होता क्या है। इसको हम आगे भी समझेंगे, उसके हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट ये आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा है क्या। हम जैसे कि मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं काफ़ी, उनको काफ़ी क्वेरीज भी हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम दूसरे हमें सेशन भी लेने हैं अभी, तो आप हमें उनको क्वेरीज, मेल में रिप्लाई कर देंगे। आप हमें मेल मेल में कर रिप्लाई सकते कर हैं, देंगे, हम बहुत सारे मेल थे। में रिप्लाई कर देंगे, फिर आप हमें फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम चैनल आप देख सकते हो, उसमें अगर आपको दोबारा वीडियोस देखने हैं उसको भी हम देख सकते हैं। तो रिप्लाई आपके सबके होंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि लोगों को समझ में आए कि है क्या। सो दिस इज द बेसिक, वी होप यू विल स्टे एट होम एंड सी द क्लासेस ऑन यूट्यूब। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रहें, हम आपके पास मटेरियल घर तक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके अंकित, थैंक यू।